Hi, and welcome to the Firefly Adda, your virtual conversation starter, a platform where we bring out insights from various thought leaders from different walks of life. In today's episode, we will be talking about the art of podcasting, what it really means, and how effective it really is as a medium for spreading the messaging and information and the thoughts from a broader spectrum to our audiences. So I just wanted to quickly introduce you to the speaker who is actually going to be a part of our conversation today. He's young, he's enthusiastic, he's zealous, hardworking, a digital practitioner. Would like to start off by telling that he is an expert at helping influencers monetize their brands. He actually runs a number one Hindi podcast. You actually heard that right, Hindi podcast, a digital podcast series, a very well-known digital practitioner. Please join me in welcoming Piyush Kukreja. Piyush, hi and welcome Thank to you the so Firefly Adda. thank you so much for the sweet and warm introduction and I'm super glad कि आपने मुझे शो पे इनवाइट किया और मुझे मौका दिया मेरी स्टोरी और मेरे नॉलेज को फीचर करने का थैंक यू सो मच आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर यू मुझे आपने अपॉर्चुनिटी दी बोलने की बहुत ही proud moment है because I have been following your work on Instagram and the kind of podcasts you've been running, the Hindi podcast series. आपने 21 day challenge set up किया था in terms of finding 21 influencers, 21 different topics during the lockdown period, and you came up with एग्जैक्टली an amazing series. I don't know how many you've covered till now, but I think टिल I नाउ इट्स did. अराउंड 35 प्लस या How many? Sorry. around 35 plus till now Wow, 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 wow. And I think you're grateful still so continuing and going strong. तो yes बहुत ही बढ़िया series है. I actually heard quite a few of the topics and conversations which you actually had उस series में, and I believe उसमें बहुत से अच्छे मतलब topics आपने निकाले और audiences को बहुत informative और insightful podcasts दिए हैं. I'm pretty sure all our audiences would be appreciating the kind of work आप जो कर रहे हैं. So thanks, थैंक and यू with सो that, मच we'll jump straight into the topic, which is आज का topic जो है podcasting के बारे में. एंड एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग ये भी है कि मेरे लिए ये भी नया है, तो जो भी आप मतलब आज वार्तालाप करेंगे मेरे साथ, उससे मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. एंड मे बी इस चीज को अपने चैनल के साथ जोड़ना चाहता हूँ, द होल एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग पॉडकास्ट. तो I also have a lot of learnings from you to get from today's show. So I'm या very ग्रेट excited, and let's आई एम quickly jump right या into the topic, डाइव which इन is podcasting. या ठीक है. तो पीयूष, बहुत बहुत ही सिंपल सा सवाल है, ये पॉडकास्टिंग होता क्या है? आई मीन फॉर अ नॉर्मल पर्सन, पॉडकास्टिंग का डेफिनेशन क्या होगा? एंड हाउ इज पॉडकास्टिंग रिलेटेड टू मार्केटिंग सॉर्ट ऑफ कैंपेन्स, एंड हाउ डज पॉडकास्टिंग रियली हेल्प any marketing professional to grow as an influencer? ऑसम दैट्स अ वेरी ग्रेट क्वेश्चन सबसे पहले मैं बताता हूँ एग्जैक्टली पॉडकास्टिंग क्या होता है पॉडकास्टिंग कुड बी एनीथिंग टॉक बिटवीन टू पीपल हम जो भी कर रहे हैं आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं हम बातें कर रहे हैं कोई टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं ये भी एक टाइप का हम इसको पॉडकास्ट बोल सकते हैं ये वीडियो पॉडकास्ट है पॉडकास्ट बेसिकली ऑडियो होता है बट वी कैन कॉल दिस एज अ वीडियो पॉडकास्ट हम वीडियो में बात कर रहे हैं एक बहुत मशहूर पॉडकास्ट आपने सुना भी होगा जो इंडिया में काफी फेमस है इंडिया में वैसे पॉडकास्ट हम थोड़ा सा न्यू है अभी अभी आ रहा है बट एक पॉडकास्ट हर एक जन ने सुना होगा या पता होगा वो है हमारे मोदी जी का पॉडकास्ट मन की बात बिल्कुल. वो भी एक पॉडकास्ट है तो आप उससे रिलेट कर सकते हो कि वहाँ पे आके वो बात करते हैं किसी टॉपिक के बारे में कोई टॉपिक लेते हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं उस बारे में बात करते हैं उस बारे में उनकी इंसाइट देते हैं नॉलेज शेयर करते हैं या कुछ न्यूज़ भी बोल सकते हैं हम वो चीज़ें करते हैं पॉडकास्ट कुड भी या दो लोगों में हम बातचीत हो रही है डिस्कशन हो रहा है या किसी चीज़ का इंटरव्यू हो रहा है या तो हम सोलो पॉडकास्ट भी बोल सकते हैं जैसे कि अभी मेरा जो पॉडकास्ट है द पीयूष कुकरेजा शो जहाँ पे मैं इंटरव्यू तो करता हूँ जो कि अपने जैसे बोला मैंने 21 डेज मैंने लगातार किया अभी अराउंड 35-36 डेज हो गए मैं लगातार कर रहा हूँ मैंने वैसे स्टार्ट किया 2018 में तो ये सिर्फ इंटरव्यू नहीं सोलो पॉडकास्ट भी है तो सोलो प्लस इंटरव्यू पॉडकास्ट ये हो सकता है लाइक एक बेसिक डेफिनेशन बताऊँ तो और ये होता है ऑडियो फॉर्म में लाइक जैसे कि एप्पल पॉडकास्ट एक ऐप है iTunes है और गूगल पॉडकास्ट है और यहाँ पे आप सुन सकते हो उसको स्पॉटिफाई है यहाँ पे पॉडकास्ट को सुन सकते हो ये बेसिकली पॉडकास्ट का एक डेफिनेशन है लाइक मेरे टर्म्स में बोल सकता हूँ मैं और आपका सेकंड क्वेश्चन था कि व्हाट एग्जैक्टली इस मार्केटिंग में कैसे हेल्प कर सकता है हम्म. तो इसको हम एज एन एक्स्ट्रा एक एडिशनल एक चैनल देख सकते हैं जैसे यूट्यूब एक चैनल है इंस्टाग्राम इज अ चैनल टिकटॉक इज अ चैनल फेसबुक लिंक्डइन
और एक डिफरेंट डिफरेंट चैनल और एक गूगल हो गया, मतलब उसमें जो ब्लॉग होता है एक चैनल है। मार्केटिंग पर्सन इसको एक एडिशनल चैनल समझ सकता है, ऑडियो चैनल है, जैसे कि एप्पल पॉडकास्ट हो गया, स्पॉटिफाई हो गया, एडिशनल चैनल जो आपका खुद का ब्रांड होगा, खुद का प्रोडक्ट होगा उसके बारे में। जैसे कि आपने देखे होंगे जो बड़े बड़े ब्रांड्स है उनका हर जगह पे कुछ ना कुछ प्रेजेंस होता है। यू वाज आल्सो वर्किंग विद अ बिग ब्रांड, जैसे कि आपका यूट्यूब पे प्रेजेंस है, इंस्टाग्राम पे है, टिकटॉक पे भी होगा, लिंक्डइन है, तो ये एक प्रेजेंस बोल सकते हैं। तो मार्केटिंग को हेल्प कैसे कर सकता है कि हमारा एक एडिशनल चैनल होगा, हम वो तरीके पे एक बात कर सकते हैं। इट कुड बी लाइक कोई ब्रांड होता है ना, तो लोगों को आजकल स्टोरीज सुनना बहुत पसंद है। तो लेट्स सपोज अगर आप कोई ब्रांड हो, आप कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, फॉर एन एग्जांपल ऐसा समझ लो कि आपकी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, क्योंकि हम मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, तो आप एक उसको ब्रांड समझो, उसमें पॉडकास्ट आप ऐसे कर सकते हो, अपनी स्टोरीज बताओ, किसी दिन एचआर को बोलो अपनी बातें करे बिहाइंड द सीन्स, आप एग्जैक्टली क्या करते हो, कैसे प्रिपेयर करते हो, क्या क्या आपकी एक्टिविटीज होती है, ये चीज कर सकते हो। सेकंड चीज, यू कैन इनवाइट योर क्लाइंट्स ऑन योर शो, कि बातें करो उनके साथ, मे बी दे कैन टॉक अबाउट यू, हाउ उन्होंने कैसे आपकी हेल्प की, कैसे कैसे आपने कैंपेन्स रन किए, कुछ को न्यू न्यू चीजें बताओ ताकि लोगों को जो सुनना पसंद करे। और सेकंड चीज ये भी, और एक चीज ये भी कर सकते हो आप, जो मार्केटिंग के जो एक्सपर्ट्स है जो कि मैं करता हूँ, उनको आप इंटरव्यू में बुलाओ। दिस कुड बी हेल्प इन मार्केटिंग, इसको से हम बोल सकते हैं ब्रांडिंग में आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आप किसी को, लेट्स सपोज अभी हम दोनों कर रहे हैं, आपने मुझे आपके शो पे बुलाया, मैं भी आपके शो पे आया हूँ, तो मेरी ऑडियंस आपको देख रही है, आपकी ऑडियंस मुझे देख रही है, सो दिस इज फ्री ट्रैफिक कमिंग टू बी बोथ ऑफ अस, हमारा एक कोलैबोरेशन है। सो मार्केटिंग में हमको इस तरह से हेल्प कर सकता है वो, इट्स लाइक कोलैबोरेटिंग में हमको एक फ्री ट्रैफिक बोल सकते हैं, और हम अपनी कंपनी की, अपनी ब्रांड की एक स्टोरी सुना सकते हैं वहाँ पे, एक अलग तरीके में, ऑडियो के तरीके में, जैसे हम यूट्यूब पे करते हैं वीडियो के तरीके में, इंस्टाग्राम पे हम ग्राफिक्स और कुछ विजुअल्स के तरीके में करते हैं, लिंक्डइन पे ब्लॉग आर्टिकल्स और छोटे छोटे पोस्ट लिख के, यहाँ पे हम ऑडियो के तरीके में थोड़ी मार्केटिंग करेंगे। सो आई होप आई वाज एबल टू आंसर दिस। नहीं, एब्सोल्युटली, बहुत अच्छे से आपने इस चीज़ को आंसर किया है। तो हम्म, जैसे कि मेरे लिए ये बिल्कुल नया है, तो मेरे हम्म, को ये जानना चाहूँगा कि मैं ये कहाँ से शुरू करूँ, कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म चूज़ करूँ, और कैसे, कुछ अगर आपके पास कोई बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रेमवर्क या कुछ टिप्स या ट्रिक्स हैं, जिससे तो मतलब एनीबॉडी कैन गेट स्टार्टेड इन टर्म्स ऑफ बीइंग अ पॉडकास्टर, तो उनके लिए आपका क्या मतलब पर्सपेक्टिव रहेगा? एग्जैक्टली, सो दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। तो प्लेटफॉर्म पे जाने से पहले मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि एग्जैक्टली पॉडकास्ट किस चीज़ पे करना है। लाइक एग्जैक्टली ये चीज़ होती है, लाइक पहले माइंडसेट की बात करते हैं। अगर कोई पॉडकास्टिंग में आ रहा है, जैसे कि आपने ब्लॉगिंग वॉगिंग तो सब करते हैं, वीलॉगिंग भी करते हैं, तो बहुत लोग जब ब्लॉगिंग में भी जाते हैं तो सोचते हैं आई विल मेक मनी फ्रॉम ब्लॉगिंग, ये सोच के आता है। तो पॉडकास्ट में, इफ यू आर थिंकिंग दैट पॉडकास्ट के बाद यू विल मेक मनी, यस, आप बहुत सारे तरीके पैसे कमाने के, बट माइंडसेट शुड बी रीचिंग आउट मोर पीपल, आपकी स्टोरी सुनाना, आपकी ब्रांड की स्टोरी सुनाना, और अपने आप को अलग तरीके से प्रेजेंट करना, बीइंग यू। तो एक माइंडसेट में जरूर बता रहा था। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द प्लेटफॉर्म, दिस इज ऐप कॉल्ड Anchor.fm। Anchor.fm एक ऐप है, ANCHOR.fm। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है, ऑल्सो ये वेब ब्राउजर टूल भी है, जैसे canva.com ऐप और टूल भी है, वैसे वो टूल भी है। Anchor.fm आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो सिंपली, जैसे आप इंस्टाग्राम में एक ऐप अपने डाउनलोड किया तो वहाँ पे आप अपना खुद का अकाउंट क्रिएट करते हो, सिंपल वहाँ पे भी अपना एक अकाउंट क्रिएट करोगे। लाइक आप साइन अप विद गूगल भी कर सकते हो। उसके बाद क्या होगा, बेसिक सा सेटअप आपको करना है। आपको अपने पॉडकास्ट का नाम चूज करना है, जैसे कि मेरे पॉडकास्ट का नाम है द पीयूष कुकरेजा शो, तो मैंने वो नाम डाल दिया वहाँ पे। वो जो भी आपका टाइटल होगा, नाम होगा पॉडकास्ट का, आप वहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद आप छोटा सा डिस्क्रिप्शन डालोगे कि आपके शो में होता क्या है, आप क्या बातें करोगे, आप एग्जैक्टली हो कौन, थोड़ी सी ऑथोरिटी दिखा सकते हो वहाँ पे, और छोटा सा वहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालो, दैट्स इट। और वहाँ पे उसका नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप ये होगा, सेटअप अकाउंट ही है। लाइक आपको एक थोड़ा सा कवर आर्ट बनाना है, फोटोशॉप में यूज करके बना सकते हो आप, या तो canva.com एक ऐप है, वहाँ से बना के जैसे अपलोड एट कवर पिक्चर, जैसे कि हमारा इंस्टाग्राम पे डीपी होता है और यूट्यूब पे हमारा चैनल आर्ट होता है, काइंड ऑफ इसको बोल सकते हैं पॉडकास्ट का कवर, पॉडकास्ट कवर। तो वो हमको अपलोड करना है, एंड बस क्लिक करना है सेटअप कंप्लीट, या सेव पे क्लिक करना है, पब्लिश पे क्लिक करना है, हमारा एक अकाउंट जो है Anchor.fm पे बन गया। हम कह सकते हैं कि हमारा पॉडकास्ट बन गया, पॉडकास्ट हमारा तैयार हो चुका है। अब हमको क्या करना है, एपिसोड्स डालने हैं। तो पहला एपिसोड हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, हम दो तीन तरीके रिकॉर्ड करने के। आप एक तो अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लो, हमारे हर एक के फ़ोन में एक नॉर्मल एप्लीकेशन आता है रिकॉर्डिंग का, उससे आप रिकॉर्ड कर सकते हो, या तो Anchor.fm भी आपको एक प्रोवाइड करता है रिकॉर्डर, वहाँ से भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो, आपकी चॉइस, आप पास से भी कर सकते हो। आपको अगर लगता है कि आपके पास कोई अलग अलग टूल्स है, सॉफ्टवेयर है, ऑडिटर्स बहुत सारे होते हैं, उनके पास टूल्स भी होते हैं, वो आप यूज़ करके रिकॉर्ड करो। उसके अलावा वहाँ पे अपलोड भी कर सकते हो। आपने अपलोड किया ऑडियो, आपको बस फिर लेट्स सपोज एपिसोड 1 है आपका,
एपिसोड 1 हमेशा इंट्रोडक्शन होना चाहिए। एपिसोड 1 लेट्स सपोज आपने बोला कि पीयूष कुकरेजा शो इस बारे में है, मैं यहाँ पे ये चीजें करने वाला हूँ, ये आपका रिकॉर्ड हो गया, आप उसको लाइब्रेरी में अपलोड करो। उसके बाद सिंपली आपको जैसे यूट्यूब पे आप वीडियो डालते हो उसके बाद आपको सेकंड ऑप्शन क्या आता है कि चूज अ टाइटल और चूज अ डिस्क्रिप्शन, ये चीज आती है। सेम उसमें भी आपको आएगा चूज अ टाइटल एंड चूज अ डिस्क्रिप्शन। टाइटल में आप डालोगे इंटरव्यू विद पीयूष कुकरेजा और इंट्रोडक्शन टू दिस एपिसोड या टॉकिंग अबाउट फेसबुक एड्स, ऐसे कुछ भी आपका जो टाइटल होगा वो डाल दो। फिर उसमें क्या हुआ है, बातें क्या हुई है, थोड़ा सा समरी और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, थोड़ा सा पॉइंटर्स में डाल दो एंड जस्ट क्लिक ऑन पब्लिश एंड ऑल्सो यू कैन शेड्यूल इट। सो ऐसे आपका पहला पॉडकास्ट तैयार हो गया और आपका पॉडकास्ट शुरू हो चुका है और एपिसोड भी पहला तैयार हो गया। सो ये छोटा सा एक तरीका है जिससे आप पॉडकास्ट स्टार्ट कर सकते। आई होप ये आंसर होगी। फैंटास्टिक फैंटास्टिक पीयूष, ये बिल्कुल मतलब इट्स एन आई ओपनर फॉर मी। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल गया इस सवाल से। थैंक यू सो मच एंड आई एक्चुअली फॉलो द सेम डायरेक्शंस जो आपने दिए हैं इन टर्म्स ऑफ सेटिंग दिस अप। जी। मैं यही करने वाला हूँ, डाउनलोडिंग द ऐप एंड सेटिंग थिंग्स अप सो दैट आई कैन लाइन अप माय पॉडकास्ट। तो अगला सवाल ये होगा पीयूष, विच इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग के मतलब टॉपिक या थीम कैसे आप सेलेक्ट करते हो, आपका क्या मैकेनिज्म होता है, आप कहीं जाके रिसर्च करते हो कैसा टॉपिक होना चाहिए, क्या थीम होना चाहिए विच विल इन्फ्लुएंस योर ऑडियंस, जिससे आपके ऑडियंस को मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप कुछ प्राइमरी रिसर्च करते हो पहले किसी टॉपिक या थीम को मतलब डिसाइड करने में, उसके बाद आप स्पीकर्स को चूज करते हो, अगर सोलो भी अगर आप जा रहे हो तो आप टॉपिक और थीम कैसे डिसाइड करते हो? सो दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। मुझे काफ़ी लोग ये क्वेश्चन पूछते भी कि टॉपिक, क्योंकि एक बहुत, हम चाहे ब्लॉगिंग कर रहे हैं या चाहे हम यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे, टॉपिक एक बहुत बड़ा एक वो होता है किसी के लिए बैरियर भी कि टॉपिक्स नहीं है हमारे पास। तो क्या आप मुझे पॉडकास्ट के टॉपिक्स की पूछ रहे हो या एपिसोड टॉपिक्स या पॉडकास्ट का पूरा थीम, लाइक जैसे मेरा डिजिटल मार्केटिंग थीम है? हाँ, तो पहले आपने एपिसोड। थीम डिसाइड किया, उसके बाद टॉपिक डिसाइड किया, तो ये कैसे मतलब आप ओके। डिसाइड करते हो? आप कुछ प्राइमरी रिसर्च करते हो इंटरनेट पे, आप किसी ऑडियंसेस को जाके पूछते हो कि क्या रेलेवेंट टॉपिक्स उनको पसंद आएंगे, तो उस हिसाब से आप कैलेंडर बनाते हो, या क्या आपका अप्रोच होता है? सो मैं दो चीज़ें बताऊंगा इसमें। एक होता है सोलो एपिसोड्स, एक होता है गेस्ट एपिसोड्स, इंटरव्यू, जहाँ पे मैं इंटरव्यू लेता हूँ या तो डिस्कशन करता हूँ कोई भी चीज़ टॉपिक पे। तो सोलो एपिसोड बेसिकली मैं ऐसे करता हूँ, हर एक को इंस्टाग्राम पे देख मेरी कुछ अच्छी फॉलोइंग है, लाइक कैन से 5000 प्लस फॉलोअर्स। लिंक्डइन पे भी मुझे कुछ लोग फॉलो करते हैं, व्हाट्सएप पे भी कनेक्टेड है, मेरे कुछ जूनियर्स है कॉलेज का, मेरे कुछ कंपनी के कलीग्स है, और फेसबुक पे भी सेम है। मुझे काफ़ी लोग क्वेश्चंस पूछते रहते हैं लाइक डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कि पीयूष ये है चीज़ कैसे कर सकते हैं, या इस चीज़ में मुझे ये आ रहा है, इसके बाद मैं क्या करूँ, मेरा होटल है मैं मार्केटिंग कैसे करूँ, या मेरा एक स्पा है मैं मार्केटिंग कैसे करूँ, मैं एक जॉब करता हूँ अभी जॉब छोड़ूँ या नहीं छोड़ूँ। ये मुझे बहुत लोग क्वेश्चंस कोई ना कोई, मैंने रैंडमली बताया, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मुझे डीएम्स में, इंस्टाग्राम डीएम्स में आते रहते हैं, क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो वो जो मुझे कोई सामने वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, वो क्वेश्चन मेरा एक टॉपिक हो सकता है, मेरा एक एपिसोड हो सकता है। मैं उसको एज अ ऑडियो एपिसोड करके उनको आंसर दे सकता हूँ। लेट्स सपोज कोई सागर नाम से बंदा है, उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा है कि पीयूष मुझे डिजिटल मार्केटिंग में करियर स्टार्ट करना है, मैंने जस्ट अपना कॉलेज खत्म हो गया है, मुझे समझ नहीं रहा है मैं अपना डिजिटल मार्केटिंग करियर कैसे स्टार्ट करूँ और एमबीए करूँ या नहीं करूँ, आई एम लिटिल कंफ्यूज। तो मैं वो एक टॉपिक हो गया, क्योंकि इस बारे में बहुत लोगों को शंका होती है, बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं एज अ बिगिनर, कोई हम्म। कॉलेज से निकलता है तो ये क्वेश्चन आता है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग में आऊँ नहीं आऊँ, एमबीए करूँ नहीं करूँ। तो दिस कुड बी माई एपिसोड, दिस कुड माई एपिसोड, ये मेरा एक एपिसोड हो गया। एक तरीका ये है। मुझे कमेंट्स में भी लोग पूछते हैं क्वेश्चन, तो मैं उसको एज एपिसोड बनाता हूँ। हमेशा नहीं बनाता हूँ, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन को एपिसोड बनाना चाहिए तो मैं उसको बनाता हूँ। एंड सेकंडली, एक चीज ये भी कर सकता हो कि अगर आपके पास लेक्चर को टॉपिक नहीं है, इंस्टाग्राम पे एक फीचर है आस्क क्वेश्चन का, हम्म। वहां पे आप जस्ट वो लोगों को बोलो कि हे आई एम अबाउट टू रिकॉर्ड सम एपिसोड, आई एम प्लानिंग टू रिकॉर्ड सम एपिसोड्स। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आप पे कोई सवाल है, आप चाहते हो मैं आपके सवालों का जवाब दूं, तो ये क्वेश्चन टैग है यहाँ पे, बस आपका एक क्वेश्चन पूछ लीजिएगा डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग, पॉडकास्ट के रिगार्डिंग। मैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में आपको फीचर करूंगा और आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो वहां पे मुझे 10 से 15 लोग क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे भी मेरा एक टॉपिक आ जाता है। उससे क्या होता है ना, पर्सनल टच बनता है, वो सामने वाला बंदा भी फिर शेयर करता है हमारा पोस्ट। इसके पीछे एक थोड़ा सा हैक है कि वो भी शेयर करता है कि उसका नाम वहाँ पे मेंशन हुआ है और हम्म। उसको पर्सनलाइज आंसर मिल रहा है। और कभी कभी ना वो क्वेश्चन बहुत लोगों के भी होते हैं, ये जो क्वेश्चन है डिजिटल मार्केटिंग में करियर कैसे स्टार्ट करूँ, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तो बहुत लोगों का आंसर हो गया एक साथ। एंड सेकंड वे, आपने जो पूछा रिसर्च करते हो नहीं करते हो, हाँ मैं कोई कोई टॉपिक पर रिसर्च भी करता हूँ। एक तो है क्वारा जो है हमारा, वो मेरा एक बहुत अच्छे फ्रेंड जैसा है कि मैं वहाँ पे बहुत अच्छा रिसर्च करता हूँ। मुझे लेट्स सपोज कोई टॉपिक पे मुझे बात करनी है
और मुझे एग्जैक्ट समझ में नहीं आ रहा है कि इस टॉपिक में भी बहुत सारी चीजें हैं बात करने के लिए। जैसे कि इंस्टाग्राम एक टॉपिक है, उसमें बहुत सारी चीजें बात करने के लिए, स्टोरीज में बात कर सकता हूँ, लाइव के लिए बात कर सकता हूँ, इंस्टाग्राम एड्स की बात कर सकता हूँ, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, बहुत सारी चीजें। तो मैं कोरा पे जाता हूँ, सर्च करता हूँ कि इंस्टाग्राम मार्केटिंग एग्जाम फॉर एन एग्जाम्पल एंटर करूंगा, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे होते हैं। तो मैं देखता हूँ कि कौन सा सवाल ज्यादा बार पूछा गया है, कौन से सवाल को ज्यादा अपवोर्ड्स है, कौन से आंसर को, और लोगों ने किस तरीके का आंसर किया। फिर मैं देखता हूँ कि अच्छा ये सवाल को लोग ज्यादा पूछ रहे हैं, ज्यादा इस रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे लोग, तो मैं उसको, जाहिर सी बात है ज्यादा लोग पूछ रहे हैं तो ज्यादा लोग आंसर सुनना भी चाहेंगे, तो मैं उसको एज ए एपिसोड रिकॉर्ड करता हूँ। ये एक चीज हो गई। और सेकंड चीज हो गई गूगल है वहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कोई टॉपिक का नाम डालता हूँ, नीचे LSI कीवर्ड्स दिखाता है गूगल, LSI कीवर्ड्स मतलब जो ज्यादा बार वहाँ पे सर्च हुआ है, मैं वहां से भी कभी कभी चूज कर लेता हूँ। ये एक चीज हो गई। और एक तरीका है गूगल कीवर्ड प्लानर, आपने टूल का नाम सुना होगा, काफी मशहूर टूल है, डिजिटल मार्केटर्स यूज करते हैं जो गूगल एड्स और एसईओ में स्पेसिफिकली। गूगल कीवर्ड प्लानर में तो आपको बहुत सारी डिटेल्स मिलेगी, लाइक आपको वो भी दिखेगा कि इसका सर्च वॉल्यूम कितना है, जिसका ज्यादा सर्च वॉल्यूम इसका मतलब लोग सर्च कर रहे हैं, मतलब लोग आंसर भी जानना चाहते हैं, तो मैं उस पर बनाऊंगा। तो ये एक तरीका हो गया। अब आते हैं गेस्ट, और एक वेबसाइट है मैं मेंशन करूंगा, answerthepublic.com। आप गूगल पे जस्ट डालोगे आंसर द पब्लिक, आपको मिल जाएगी वेबसाइट। वहाँ पे आप जस्ट टॉपिक सर्च करो, आपको मल्टीपल टॉपिक्स मिल जाएंगे। लाइक आप सर्च करोगे डिजिटल मार्केटिंग, तो आपको हर डिजिटल मार्केटिंग के हर रिलेटेड टॉपिक मिल जाएगा, आप एसईओ वगैरह, तो वहाँ से भी आप टॉपिक के आइडिया ले सकते हो। एंड नाउ लेट्स कम टू द गेस्ट पार्ट। तो गेस्ट में मैं क्या करता हूँ बेसिकली, मैं एक लिस्ट बनाता हूँ पहले गेस्ट की। लेट्स सपोज मैं वो ऐसे रैंडम नहीं होती है, लाइक लेट्स सपोज क्योंकि मैं 3 साल से डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में हूँ, तो मैं काफी लोगों को जानता भी हूँ। हम काफी लोगों को हमारे इंडस्ट्री में खुद भी फॉलो करते ही है, तो हमारे पास हमको पहले से वो नाम याद होते हैं। जैसे कि मैं कुछ लोगों को फॉलो करता था, जैसे कि रोहन चौबे, बैंकी कटारिया, हार्दिक लश्करी, अभी आर्या, सौरोजन, ऐसे मैं लोगों को फॉलो करता था। कुछ कुछ लोग मेरे कनेक्शन में भी थे। तो मैं एक्सेल शीट लेके बैठता हूँ, मैं बता रहा हूँ कि एक्सेल शीट में अभी जैसे कि मुझे 21 डेज का स्टार्ट करना था, राइट। मैं एक्सेल शीट लेके बैठा, और यू वोंट बिलीव, ये इतना अनप्लान था। लाइक मोदी जी ने अनाउंस किया कि कल से, ऑब्वियसली मेरे को पहले से तो पता नहीं था किसी को कि मोदी जी ऐसा आके बोलने वाले हैं कि कल से 21 दिन के लिए बंद होने वाला है। तो मोदी जी ने बोला, लाइक अराउंड, मुझे टाइम नहीं आ रही है, शायद रात को 8 या 9 बजे वो लाइव आए थे, तो उन्होंने बोला कि नेक्स्ट डे से आज रात को 12 बजे से लेके लॉकडाउन होने वाला है 21 दिन के लिए। तो मेरे दिमाग में सडनली क्लिक हुआ कि मैं वैसे भी कंसिस्टेंट, टू बी ऑनेस्ट मेरी कंसिस्टेंसी थोड़ी टूट गई थी कुछ महीनों से, तो मैंने ज्यादा एपिसोड नहीं कर रहा था। तो मैंने बोला यार तो अच्छा, मतलब मैं एक क्रेज क्रिएट कर सकता हूँ, मार्केटिंग एंगल भी क्रिएट कर सकता हूँ, थोड़ा सा हाइप क्रिएट कर सकता हूँ कि 21 दिन 21 एपिसोड 21 गेस्ट, 21 एपिसोड 21 डेज 21 गेस्ट 21 लर्निंग्स, ऐसा मैंने कुछ हाइप क्रिएट किया। फिर अभी मैंने वो तो अनाउंस कर दिया, फिर मैं सोचता था 21 गेस्ट कहाँ से लाऊं, तो मैंने एक गूगल शीट्स जो थी वो ओपन की, खाली शीट थी, मेरे दिमाग में जो भी नाम आ रहा था मैं लिखते जा रहा था। लाइक कुछ लोग ऐसे नाम आ रहा था कि अच्छा मैं इनको फॉलो करता हूँ, तो मैंने फटाफट फटाफट नाम लिखते जा रहा था, रोहन चौबे, हार्दिक लश्करी, वेंकी कटारिया, सौरव जैन, जो भी नाम है, डजेंट मैटर वो कितना बड़ा इन्फ्लुएंसर है, वो मुझे रिप्लाई देगा नहीं देगा वो बात की बात है, पहले हमको नाम लिखना जरूरी है ताकि मैं भूल ना जाऊँ। मैंने फटाफट से वो नाम लिख लिए, और मेरे अराउंड 30 से 40 नाम तो मैंने ऐसे ही लिख दिए थे, क्योंकि मैं पहले से ही इंडस्ट्री में हूँ, बहुत सारी कम्युनिटीज का पार्ट हूँ, उसमें से मुझे बहुत लोग पहचानते भी थे। उसमें से मैं बताना चाहूंगा आपका भी नाम है। लाइक मैंने बाद में वो लिस्ट 100 लोगों की बन गई अभी, क्योंकि मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, उसमें आपका भी नाम है। लाइक मतलब आपका इंस्टाग्राम यूजर नेम और मैंने लिंक डाला था वहाँ पे कि थैंक यू। आपसे मैं रीच आउट करने वाला था। जी जी, आपका भी नाम था। लाइक अराउंड 100 लोगों की लिस्ट है वो, मुझे अभी सबका नाम तो याद नहीं, बट आपका नाम जरूर था। तो उसके बाद क्या हुआ, अभी मैंने नाम लिख दिया, फिर मैं साथ ही साथ ये भी कर रहा था, अभी रोहन चौबे का नाम लिखा, उसके बाजू में मैं वो भी चीज लिख रहा था, क्योंकि मुझे पता है रोहन चौबे किस चीज में एक्सपर्ट है, तो मैं बाजू में उनके टॉपिक का नाम लिख रहा था। अच्छा रोहन चौबे कैन टॉक अबाउट दिस, मैं टॉपिक का नाम लिख रहा था, 2 या 3 टॉपिक्स का। फिर हार्दिक लश्करी से कंटेंट राइटर, लेट्स, फिर मैं वहाँ पे कीवर्ड लिख रहा था, कंटेंट राइटिंग। फारूक ऑथर, अमेजिंग ऑथर, तो मैं वहाँ पे ऑथर लिख रहा था, मतलब उस रिलेटेड बात होगी। ऐसे मैंने कर दिया, फिर मैंने रीच आउट करना शुरू कर दिया, वही फिर ऐसे टॉपिक्स में करता था, मतलब जो गेस्ट है उनका एक्सपर्टाइज किया, मैं बाजू में कीवर्ड्स लिख देता था। तो दिस इज हाउ आई प्लान माय लाइक रिसर्च माय टॉपिक्स एंड एवरीथिंग। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। नहीं, बहुत ही एलोबरेट डिस्क्रिप्शन आपने दिया है इस चीज का, तो बहुत बहुत बढ़िया। आई थिंक आई पिक्ड अप अ लॉट ऑफ वैलिड पॉइंट्स फ्रॉम दैट, एंड बहुत सी चीजें मैं भी इसी से पिकअप करते हुए इम्प्लीमेंट करूंगा अपने पॉडकास्ट सीरीज में भी। सो थैंक यू फॉर दैट। एक और सवाल उसी से कनेक्टेड ये रहेगा कि लेंथ क्या होना चाहिए किसी पॉडकास्ट का, क्योंकि ऑडियंस का अटेंशन स्पैन आजकल इतना ज्यादा भी नहीं होता है, क्योंकि डिसरप्शंस और मल्टीटास्किंग करते हैं ऑडियंस। तो आइडियल लेंथ क्या होना चाहिए जिससे आपका कंटेंट भी कन्वे हो जाए और ऑडियंस को भी अच्छा टेक अवे मिले,
ताकि if it's a longer podcast, then maybe somebody might not like that, and somebody might not really be that engaged into listening the whole podcast. तो आपके हिसाब से the ideal length क्या होना चाहिए किसी podcast का? दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। तो लेंथ डिपेंड करता है, मैं बोलूँगा टॉपिक के ऊपर। पहले हम सोलो की बात करें, अगर सोलो एपिसोड है तो टॉपिक पर डिपेंड करता है। अगर वो कोई टॉपिक आप ले रहे हो, वो अगर वो 5 से 10 मिनट में खत्म होना हो सकता है तो उसको एक्सटेंड मत करो। और पॉडकास्ट में ना मेरे हिसाब से टाइम का कोई बैरियर नहीं होना चाहिए, क्योंकि पॉडकास्ट एक ऐसी चीज़ है, मैं ऑडियो पॉडकास्ट की बात कर रहा हूँ, ऐसी चीज़ है वो बैक एंड में भी चल सकती है, वो मल्टीटास्किंग में साथ जोड़ा जा सकता है। जैसे कि लेट्स सपोज कोई कार चला रहा है, आप कार चला रहे हो, कार के साथ साथ आप वीडियो नहीं देख सकते हो, आप एक्सीडेंट हो सकता है, कोई भी इशू हो सकता है, कार इधर की उधर भी जा सकती है, एंगल चेंज हो सकता है, क्योंकि आपका ध्यान जो है, अटेंशन जो है वीडियो की तरफ चल जाएगा। या आपको गाड़ी रुका, कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपके कोई क्लाइंट की वीडियो आपको देखनी है, तो आपको गाड़ी रुकानी पड़ेगी, राइट। पर Yes. पॉडकास्ट में कैसा होता है, जैसे कि आप गाड़ी चलाते हो, आपका रेडियो आपने ऑन किया, तो गाड़ी रोकने की जरूरत नहीं और ना ध्यान भटकाने की जरूरत है, गाड़ी भी चल रही है, किसी से बातें भी हो रही है जो गाड़ी में हमारे साथ बैठा है, और हम पॉडकास्ट या रेडियो जो आप सुनते हो सुन भी सकते हो। तो पॉडकास्ट बहुत लोग कार में भी मेरा कभी कभी सुनते हैं, मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हैं, मुझे स्टोरीज में भी टैग करते हैं, काफी लोग नहीं। तो एक बेनिफिट है कि बैकएंड में भी चलता है। तो मेरे हिसाब से इसको लेंथ की कोई पाबंदी नहीं है, हाँ, बट आपको 2 से 3 घंटे भी नहीं जाना है। सो लेंथ शुड भी, अगर आप सोलो कर रहे हो तो कोशिश करो, अगर टॉपिक कवर हो सकता है 10 मिनट में, तो उसको 10 से 15 मिनट में कवर करो। अगर वो कोई स्टोरी आप बताना चाहते हो तो यू कैन गो विद 15 to 20 मिनट्स। बट सोलो मैं बोलूंगा, सोलो को थोड़ा 5 से 20 मिनट के इसके अंदर रखो, इसके आसपास, डिपेंड ऑन टॉपिक। लाइक अगर वो टॉपिक आपको लग रहा है कि मैं कुछ टिप्स दे रहा हूँ, वो 10 मिनट में कवर हो सकती है, उसमें करो लाइक 5 से 20 मिनट के अंदर। बट अगर आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे पास, मैंने जो जो इंटरव्यूज लिए, कुछ कुछ इंटरव्यूज में आपने देखे होंगे, उसमें 1.5 घंटे के भी इंटरव्यूज, लाइक 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट, मैक्सिमम इज 1 hour 30 minutes अराउंड, इतना 1.5 घंटे का भी है। और मैंने जब स्टैट्स देखे, मैं कभी कभी स्टैट्स देखता हूँ हफ्ते में 1 बार 2 बार, तो मैंने जब देखा है वो शौक कि लोगों ने सुना है 50 मिनट तक, ऑन एवरेज जो टाइम आता है वहाँ पे 45 मिनट्स भी था। और शौक कि लोग सुनते हैं ये एपिसोड्स, क्योंकि वो काम भी अगर कर रहे हैं तो वो पीछे से एपिसोड सुन सकते हैं। क्योंकि मैं खुद का भी अगर बिहेवियर बताऊं, मैं गैरी वी का पॉडकास्ट सुनता हूँ। गैरी वी को आप जानते होंगे, गैरी वेनरचक, हाँ। बहुत मेरे, मैं उनको मेंटोर समझता हूँ मेरा, क्योंकि उनके ऐसे मुझे एक इंस्पिरेशन मिला था। तो मैं उनका बैकएंड में सुनता हूँ और अपना अपना काम करता रहता हूँ। लेट्स रिलेट विद सॉन्ग्स, हम भी गाने जब सुनते हैं तो हम पीछे काम करते हैं, कभी भी हमारा अटेंशन नहीं हटता है, वैसे उसको स्किप नहीं करते। बट अगर कोई वीडियो देख रहे हैं तो हम कर लेते हैं ये कि अरे ये वीडियो छोड़, मैं बाद में देख लूंगा, आधा इसको कल कंटिन्यू कर दूंगा, या परसों कभी कभी भूल भी जाते हैं। सो पॉडकास्ट लेंथ इफ यू आस्किंग मी, अगर सोलो है तो 5 से 10 मिनट, 5 से 20 मिनट होना चाहिए। ठीक है, एक आध बार आपका थोड़ा बढ़ा जा रहा है पॉडकास्ट 25 मिनट, डिपेंड ऑन द टॉपिक, आपको लग रहा है कि उसको कवर करना चाहिए, आप कवर करो। और जो गेस्ट एपिसोड है तो उसको आप 25 मिनट रख सकते हो, 25 से लाइक 50 मिनट रख सकते हो। इट्स अ गुड लेंथ, मैं यही रखता हूँ मेरे पॉडकास्ट का। और काफ़ी लोग सुनना भी पसंद करते हैं, ऐसा मैंने स्टैट्स भी देखे, मेरे स्टैट्स के अनुसार बता रहा हूँ मैं, लोग सुनते हैं, लोग पसंद भी करते हैं। और हाँ, और एक चीज़ की, ऐसा अगर गेस्ट एपिसोड में बोल रहा हूँ कि 1 घंटे का मैं रखता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको 1 ही घंटे का रखना है, टॉपिक पर डिपेंड करता है। अभी कोई टॉपिक ऐसा भी होता है कि वो 25 मिनट से ऊपर आप खींच भी नहीं सकते हो, 25-30 मिनट के ऊपर कितना भी कर लो, तो उसको मत खींचिए, गो विद द फ्लो। मेरे बोलने का मतलब है कि इसमें समय की पाबंदी नहीं, लिमिटेशंस की। अगर आपका टॉपिक ऐसा है कि जितना हो रहा है चलने दो, फोर्स मत करो, टाइम मत देखो, अरे टाइम हो रहा है, टाइम हो रहा है, टाइम हो रहा है, ऐसे मत करो, फ्लो पे जाओ, जो आपको दिल से रखना है, बोलना है बोलो, अपनी बात को प्रेजेंट करो। सो माई लेंथ, सो 5 to 20 मिनट्स फॉर सोलो, अगर मुझे एग्जैक्ट लेंथ पूछ लो, 25 to 15 मिनट्स, 50 मिनट्स, 50 मिनट यू कैन गो फॉर गेस्ट एपिसोड। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। No, it really does. बिल्कुल, मतलब we will definitely keep this in our minds. जब भी हम किसी पॉडकास्ट बनाएंगे तो I think these are some very good best practices जो आपने दिए हैं। अगला सवाल पीयूष ये है कि कोविड-19 सिचुएशन के वजह से मैं कहीं पढ़ रहा था, एक रिसर्च आर्टिकल आया था कि पॉडकास्ट का लिसनरशिप जिसको बोलते हैं 18 से 22% बढ़ा हुआ है इस जी, लॉकडाउन के वजह से। तो उसका मतलब यही हुआ कि मतलब पॉडकास्ट रियली वर्क्स, पीपल आर लिसनिंग एग्जैक्टली, टू अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट। सो आई थिंक दैट एक्चुअली मीन्स कि जो हम बात कर रहे हैं हैज अ लॉट ऑफ रेलेवेंस एंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यस, एज अ मीडियम। यस इट इज, तो क्या कहना एग्जैक्टली, चाहेंगे इसके काफी बारे सही में? बोला आपने। जी, जी, काफ़ी सही बोला आपने कि जो आपने स्टैट्स देखा जहाँ पे 18 to 20% का ग्रोथ हुआ है, जो कि मैं अपने पॉडकास्ट में भी देख रहा हूँ। मैं इसके बाद आपके साथ एक स्क्रीनशॉट भी शेयर करूँगा, अगर आप चाहो तो आप शेयर कर सकते हो मेरे स्टैट्स का स्क्रीनशॉट।
जो कि मैं यूजुअली सोशल मीडिया पे डालता हूँ, बट आई विल लव टू शेयर विद यू स्क्रीनशॉट, जहाँ पे आप वो जो ग्राफ होता है ना, ग्राफ जो कर्व हम्म। होती है वो, तो हम्म। आप उसमें आप देख के समझ जाओगे कि कितना उसमें डिफरेंस आ रहा है। ऑब्वियसली कंसिस्टेंस की भी बात है, मैं कंसिस्टेंट हूँ इसलिए वो ऐसा हो रहा है। बट मैंने ऐसा नोटिस भी किया कि लोग सुन रहे हैं, और लोग 40-40 मिनट भी सुन रहे हैं, 50 मिनट भी सुन रहे हैं, लोग 30 मिनट भी सुन रहे हैं, मतलब ज़्यादा देर भी सुन रहे हैं। मुझे मैसेज भी आते हैं कि उन्होंने पूरा ये एपिसोड सुना, मुझे फीडबैक भी देते हैं। और मैं अपने पॉडकास्ट के आखिरी में ऐसी चीज़ डालता हूँ कि मुझे समझ जाता है किसने सुना किसने नहीं सुना, मतलब एक मैं कॉल टू एक्शन देता हूँ ताकि वो लोग मेरे पास रिटर्न आए, जो कि एक मार्केटिंग की खासियत है। आपको बताइए, मार्केटिंग में स्टार्ट में अगर कोई चीज़ शुरू कर रहे हैं तो उसको हुक दो ताकि वो चीज़ में अटके, और आखिरी में जाने से पहले उनको कोई ऐसी चीज़ दो कि दोबारा हमारे पास आए किसी और तरीके से आए, वो होता है कॉल टू एक्शन। क्योंकि माइंड मार्केटिंग मेरा माइंडसेट है, तो कॉल टू एक्शन तो हमेशा मेरा चलता ही जहाँ पे भी आओ। तो अगर बोलते हो हाँ, तो ये हमारा कंजम्पशन बढ़ रहा है क्योंकि आज सारे लोग घर पे बैठे हैं, हम्म। और सारे लोग कुछ ना कुछ सुनना, कुछ ना कुछ नॉलेज गेन करना पसंद करते हैं। ऑब्वियसली दो टाइप के लोग आते हैं, एक होते हैं कि जो ज्यादातर वेब सीरीज वगैरह देखते हैं, जो कि कोई बुरी बात भी नहीं है, हम्म। बट बहुत लोग जो नॉलेजेबल चीजें हैं वो सुन रहे हैं। हाँ, और मैं एंटरटेनमेंट की बात करूँ तो एंटरटेनमेंट में बहुत सारे पॉडकास्ट ऐसे आए, फनी पॉडकास्ट आए, कॉमेडी पॉडकास्ट बहुत सारे आए। आपको रणवीर सिंह जो रोडीज वाले, उनका नाम हम्म। सुना हो, हाँ हाँ। उनका भी रिसेंटली कोई पॉडकास्ट, डिस्कशन वाला पॉडकास्ट उनका गाना.com पे समथिंग लॉन्च हुआ है। मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं, बट मेरे कोई फ्रेंड्स बता रहे थे कि उनका लोग सुनते हैं, डिस्कशन वगैरह बातें सुनना पसंद करते हैं। तो हाँ, वो जो आपने बोला कि वो जो ग्रोथ है वो हो रहा है, और मेरे हिसाब से सही टाइम है पॉडकास्ट स्टार्ट करने का। एक में मेरा एक पंच लाइन है, मैं एक जो हमेशा हर जगह मेंशन करता हूँ, रोहन के हम्म। साथ मेरी बुक आ रही, मैंने उसमें मेंशन किया, और मेरे कुछ ब्लॉग आर्टिकल्स में भी, स्टार्टिंग अ पॉडकास्ट इन 2020 इज लाइक स्टार्टिंग योर ओन यूट्यूब चैनल इन 2010। ये डिमांड एंड सप्लाई का वो रूल अप्लाई होता है, आपको भी पता है। जैसे कि हाँ। दो लेट्स सपोज आपने 2010 में यूट्यूब चैनल शुरू किया होता, तो अटेंशन बहुत था, लोग बहुत थे, डिमांड लाइक बहुत था, धीरे धीरे बढ़ भी रहा था, बट सप्लाई कम था। इन द हम्म। सेंस मेरा बोलने वाला है कि कंटेंट क्रिएटर्स कम थे, बट अभी वो बढ़ गए। अगर हमको यूट्यूब पे जाना है तो हमको स्टैंड आउट करना पड़ेगा, जो कि आप कर रहे हो, इंटरव्यूज लेके थोड़ा सा हटके कर रहे हो चीजें, थोड़ा सा यूनिक वे में कर रहे हो, अपना फ्लेवर ला रहे हो उसमें, इंटरव्यू एक्सपर्ट्स को ला रहे हो, थोड़ा सा यूनिक वे, ऐसा कोई यूनिक वे सोचना पड़ेगा। बट पॉडकास्ट में अभी अवेयरनेस भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, और कंटेंट क्रिएटर्स इतने ज्यादा नहीं है, आई मीन पॉडकास्टर्स इतने ज्यादा नहीं है। तो एक बेनिफिट है आपको स्टैंड आउट करने का, जैसे कि आपको अभी दिख गया होगा बेनिफिट कि मैं पॉडकास्ट हिंदी में कर रहा हूँ, तो लाइक आपको बहुत कम दिखे होंगे पॉडकास्टर्स जो हम्म। कर रहे हैं इंडिया में, स्पेशली डिजिटल मार्केटिंग पर। तो इसलिए आपको मेरे बारे में पता चला, क्योंकि बहुत कम लोग थे। अगर उसी में ज्यादा नॉइज होता, अगर 1000 लोग होते तो आप सबका नाम याद ही रख पाते, जाहिर सी बात है, आप हम्म। मुझे जान नहीं पाते अनटिल मैं कुछ यूनिक नहीं कर रहा हूँ। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर ओन पॉडकास्ट, एंड लॉकडाउन है तो आपके पास टाइम है, तो यू कैन टेक आउट 1 hour टू स्टार्ट योर ओन पॉडकास्ट। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, दिस डेफिनेटली आंसर्स द क्वेश्चन। और अगर हम मोनेटाइजेशन की बात करें तो हाउ वुड यू रिलेट मोनेटाइजेशन टू पॉडकास्टिंग? कुछ रिलेशनशिप है दोनों का? या जी जी है। तो ये मुझे काफी लाइक मोस्ट कॉमन आस्क्ड क्वेश्चन, लाइक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है मेरे जो डीएम्स में मुझे आता है। आपको भी हम्म। पता होगा, आजकल के यूथ है, जो यंगस्टर्स है, वो हर चीज में पैसा अटैच कर ही लेते हैं। यूट्यूब हम्म। चैनल भी अगर किसी को यूट्यूबर को पूछो, उनको ये क्वेश्चन कमेंट्स में आता है, सर आपने मोनेटाइज कैसे किया? हम्म। तो मेरे लिए जो मोनेटाइजेशन की जो डेफिनेशन है थोड़ी सी अलग है। अगर आप इजाजत चाहो तो मैं आपको वो बोलूँ डेफिनेशन जो है मेरी। बिल्कुल बिल्कुल, गो अहेड। तो मोनेटाइजेशन बेसिकली लोग सोचते हैं जो कि इन टर्म्स ऑफ मनी, ऑब्वियस सी बात है, एग्जैक्टली वो तो है ही, पैसे के दम पे मोनेटाइजेशन होती है। बट मैं कुछ अलग वे से सोचता हूँ। मेरा जो पॉडकास्ट है वो डे वन से मोनेटाइज्ड है, हम्म। डे वन से। जिस दिन मैंने शुरू किया था उसी दिन से, पहले एपिसोड से, मैंने जब पहली स्टोरी डाली थी, पहला पोस्ट किया था फेसबुक, लिंक्डइन और बाकी सब सोशल मीडिया पे, उस दिन से मोनेटाइज है। इन द सेंस बेनिफिट मुझे वहां से मिल रहा है। मैंने बेनिफिट लाइक जैसे कि मैं कोई गेस्ट को इनवाइट कर रहा हूँ, मैं किसी को इनवाइट कर रहा हूँ, तो मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं, इंट्रोडक्शन हो रहा है दोनों का, मेरा उस एक्सपर्ट से इंट्रोडक्शन हो रहा है, बाद में मैं उनसे नेटवर्क बना रहा हूँ। तो नेटवर्किंग इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क मुझे काफी बेनिफिट हो रहा है। लाइक मुझे इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है ड्यू टू पॉडकास्ट। मैं आपको बता सकता हूँ, लिंक्डइन लोकल एक इवेंट होता है जो कि हम्म। हमारे सिटी नासिक में होता है, मुंबई में भी होता है, हर जगह होता है। नासिक में पहली बार हो रहा था, और दे वर लुकिंग फॉर अ स्पीकर। तो मेरे एक पॉडकास्ट गेस्ट थे वेंकी कटारिया नाम से, हम्म। तो मैंने उनका पहले से इंटरव्यू लिया था, और उनसे बात, उनके बाद पॉडकास्ट के बाद भी बात होती रहती थी, नेटवर्क अच्छा बिल्ड किया था उनके साथ। तो उनको चांस मिला था वहाँ बोलने का, बट ही वॉज समवेयर लाइक कोई और सिटी में थे, तो उनको बोला था कोई एक्सपर्ट हमको रेकमेंड करो। ही रिकमेंडेड मी। हम दोस्त तो नहीं है, नहीं हम्म। हम पहले मिले थे उनसे, बट उन्होंने मुझे रेकमेंड किया, क्योंकि पॉडकास्ट की वजह से उन्होंने मुझे जाना, मैंने उनको जाना, हमारी कुछ बातचीत हुई, इंट्रोडक्शन हुआ। उसके बाद एक दूसरे को वैल्यू प्रोवाइड करना वो तो चलता ही रहता है।
पॉडकास्ट की वजह से मुझे बेनिफिट मिला, इसको हम एज अ मोनेटाइजेशन समझ सकते हैं ना। स्पीकिंग के पैसे देके भी नहीं मिलती, बिल्कुल बट आई एम बिल्कुल। गेटिंग ड्यू टू माय पॉडकास्ट, तो इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन है। हम्म सेम वो मैं लिंक्डइन लोकल नासिक में पहला ही इवेंट था, मैंने ओपन किया। सो मैंने कभी ऐसी कोई शो ओपन नहीं किया था, पहली बार वो फर्स्ट एडिशन था और मेगा लॉन्च था उनका, और मैंने वो शो ओपन किया, काफी लोगों को पसंद भी आया, काफी ऑडियंस मुझसे कनेक्ट हुई ड्यू टू माय पॉडकास्ट। एंड उसके वजह से मुझे लिंक्डइन लोकल थाने, जो मुंबई में थाने सिटी है, वहां पे मुझे आने का मौका मिला उसकी वजह से। और उसी की वजह से मैं आपको बताता हूँ, अभिजीत आर्य जिनके साथ मैं 1 साल से काम कर रहा हूँ, आज हम्म 12 बज चुके हैं, 2 मई को ऑफिशियली मुझे 1 साल खत्म हो गया उनके साथ काम करने का। तो मैं पॉडकास्ट की वजह से उनसे कनेक्ट हुआ और उन्होंने मुझे काम करने का मौका दिया और मैं अपॉर्चुनिटी मिली। तो ये अपॉर्चुनिटीज भी एक टाइप का मोनेटाइजेशन है, मैं सोचता हूँ। अपॉर्चुनिटीज एक मोनेटाइजेशन हो गया, आपको नेटवर्क आपका बढ़ रहा है। जैसे रोहन चौबे जो उनकी ग्रोथ हैकिंग बुक है, जो पार्ट 1 आपको बताया बहुत मशहूर हुई हम्म थी, बहुत जगहों पे बेस्ट सेलर भी थी, अवार्ड विनिंग बुक है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैं भी उनके बुक लॉन्च पे गया था, बहुत मेगा लॉन्च था। और उनकी पार्ट 2 भी आ रही है, वो बुक का पार्ट 2 आ रहा है, एडिशन 2 आ रहा है, जो अभी कुछ महीनों में लॉन्च होगा। और रोहन ने मुझे भी अपॉर्चुनिटी दी है उनके बुक में हिस्सा बनने की, पार्ट बनने की। तो ये एक मोनेटाइज, आई थिंक दिस इज अ पार्ट ऑफ मोनेटाइजेशन। कैसे दी? पॉडकास्ट की वजह से। मैं एक हार्दिक लश्करी नाम से एक मेरे फ्रेंड है, मेरे गेस्ट है, उनके साथ मैं पॉडकास्ट कर रहा था, अभी मेरे अच्छे दोस्त भी बन गए। तो वो रोहन चौबे देख रहे थे, हम्म इंस्टाग्राम लाइव पॉडकास्ट था एक्चुअली वो। तो रोहन ने मुझे लाइक मैं देख रोहन चौबे वहाँ पे कमेंट्स भी कर रहे थे, मैं रोहन चौबे को रिप्लाई भी कर रहा था इन कमेंट्स। उसके दौरान हम डीएम्स में कनेक्ट हुए, इंस्टाग्राम डीएम में हमने एक दूसरे से बात की। फिर उन्होंने मुझे उनके बुक लॉन्च पे बुलाया, तो पॉडकास्ट की वजह से उन्होंने मुझे बुक लॉन्च पे बुलाया, उसकी वजह से उन्होंने मुझे जाना, उसकी वजह से मुझे उनकी बुक में अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और ऊपर से मेरा ये मोनेटाइजेशन ही तो समझूंगा मैं इसको। तो मोनेटाइजेशन इसमें है, आप कैसे समझते हो, इट्स अप टू यू। अगर आप पैसों की बात कर रहे हो, अभी मैं वो भी आंसर देता हूँ, नहीं तो लिसनर्स व्यूअर्स बोलेंगे हम्म कि इन्होंने पैसों की बात की ही नहीं। बट मैं इससे मुझे बड़े बड़े क्लाइंट्स भी मिले, टू बी ऑनेस्ट मुझे काफी बड़े बड़े क्लाइंट्स मिले। और मेरे गेस्ट, आप बिलीव नहीं करोगे, थोड़ा सा फनी लगेगा, मेरे जो गेस्ट है उनको भी मेरे पॉडकास्ट से किसी किसी को लीड्स मिली है, क्योंकि मैं जब भी जब सोशल मीडिया पे डालता हूँ तो वो उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाती है, कभी उनको लिंक्डइन कनेक्शन आ जाता है। हम्म अभी रिसेंटली की बात है, मैं व्हाट्सएप पे स्टेटस भी डालता हूँ, हर जगह प्रमोट करता हूँ। मैं बिलीव करता हूँ व्हाट्सएप भी एक अच्छा मीडियम है प्रमोट करने के लिए, व्हाट्सएप स्टेटस का रीच भी अच्छा है। हम्म तो व्हाट्सएप पे मैं स्टेटस भी डालता हूँ, जो स्टोरी बोल सकते हैं उसमें डालता हूँ। तो मुझे वो किसी ने लाइक मेरे बिजनेस कनेक्शन है, वो उनकी एज 55-60, एक इंग्लिश इंस्टीट्यूट चलाते हैं, बड़ी वर्कशॉप्स के इसमें मिले थे, मेरे वर्कशॉप में आए थे। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे रिप्लाई किया था, आई वांट टू कनेक्ट विद दिस गेस्ट, मुझे इनसे काम है, एसईओ की सर्विस लेनी है। तो हम्म उन मेरे गेस्ट को उनके ऐसे क्लाइंट मिला पॉडकास्ट की वजह से। लाइक मुझे तो बेनिफिट हो ही रहा है, मेरे गेस्ट को भी हम्म हो रहा है, उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अगर आप मोनेटाइजेशन की वो बात करोगे दूसरे टर्म्स में, इन ओनली मनी टर्म्स, तो बहुत सारे तरीके। आप ब्रांड्स को रीच आउट कर सकते हो, हम्म पीआर बोल सकते हो, जैसे किसी का ब्लॉग होता है तो ब्रांड्स को रीच आउट करते हैं। जैसे यूट्यूब अच्छा एग्जांपल है, जैसे भुवन माम है, वो कोई ब्रांड से कनेक्टेड है, उनकी फिर वीडियो में एक छोटा सा प्रमोशन कर लेते हैं। आप भी वो चीज कर सकते हो। लेट्स सपोज आप डिजिटल मार्केटिंग, आपका पॉडकास्ट है, जो डिजिटल मार्केटिंग के जो टूल्स है, उनके पास जो टूल्स के ओनर है, उनका ईमेल आईडी निकालो, उनको ईमेल करो, उनको बोलो कि आई एम डूइंग दिस पॉडकास्ट, इसमें मेरे इतने इतने लिसनर्स है, मेरा सोशल मीडिया पे इतना रीच है, मैं ऐसे प्रमोट करता हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं आपका टूल प्रमोट करूँ, सो लेट अस नो, मैं आपका टूल प्रमोट कर सकता हूँ। फिर वो आपको रिप्लाई देंगे, आप उनको पैकेजेस दे सकते हो कि $100 में आपका पॉडकास्ट में इतना नाम लूंगा, हम्म $200, $300 में स्पेसिफिक पूरा एपिसोड करूंगा आपके साथ, आपके सीईओ के साथ, आपके मार्केटिंग हेड के साथ पूरा एपिसोड करूंगा। $500 में आपको सोशल मीडिया पे प्रमोट करूंगा, सब जगह प्रमोट करूंगा। ऐसे 3 उनको पैकेजेस दे सकते हो आप। ये ब्रांड एंडोर्समेंट जो कि पॉडकास्ट ही नहीं, बाकी सारी चीजों में होती है, इंस्टाग्राम में भी होती है, जो कि यूट्यूब पे भी होती है। तो ये चीज अप्लाई कर। सेकंड चीज, एंकर.fm जो ऐप है, उसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है कि शो एड्स। ऐसे जैसे यूट्यूब पे नहीं आप मोनेटाइज करते हो तो आपके वीडियो पे हाँ किसी किसी की एड्स आती है, तो सेम एंकर.fm पे वो न्यू है, लाइक ज्यादा भी पुराना नहीं है, अभी 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 आया, अराउंड 6 से 7 महीने हुए उसको, 8-9 महीने हुए होंगे, अराउंड 6-7 महीने हुए होंगे, दिवाली के आसपास आया था। जहाँ पे आप अपना पॉडकास्ट उनके तरफ से ही मोनेटाइज कर सकते हो। जैसे कि लोग सुनेंगे तो बीच में अचानक से ऐड आ जाएगा, और उसमें आपको इतना उन्होंने प्रिविलेज दिया है कि आप डिसाइड करोगे कि ऐड कहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए, वहाँ पे आना चाहिए। और एक अगर आपको मैं बात बताऊंगा, और एक बात की मैंने अप्लाई नहीं की है, मैं वो मोनेटाइज नहीं किया है, और एक प्रिविलेज उन्होंने ऐसा दिया, आप सुन के लाइक खुश हो जाओगे, कि उसमें उन्होंने ऐसा ऑप्शन भी दिया है कि वो जो ऐड होगी वो आपके वॉइस में होगी ऐड। अच्छा वो आपको बताएंगे ये ब्रांड है, उसके बोलो। मैंने वो कभी ट्राई नहीं किया, क्योंकि मुझे अपना पॉडकास्ट इस तरीके से मोनेटाइज नहीं करना है, क्योंकि मैं अटेंशन पे बिल्ड, जैसे आपने स्टार्ट में बताया, अटेंशन बहुत कम है पहले से, और हम्म अटेंशन पहले से कम है, उसमें अगर ऐड आ जाए तो फिर मजा नहीं आएगा। बिकॉज मुझे लॉयल एक फैन बेस बनाना है, लॉयल मुझे आपने पैटर्न की एक लाइन सुनी होगी, यू जस्ट वांट फर्स्ट 1000 सुपर फैंस। तो मैं वही एक मिशन पे हूँ, मेरे कुछ कुछ धीरे धीरे बन रहे हैं,
लॉयल फॉलोइंग, लॉयल ऑडियंस, लॉयल लिसनर्स बन रहे हैं, मैं उसमें बिलीव करता हूँ। और वही मुझे पता है कैसे प्रमोट करेंगे, कैसे मैं मोनेटाइज कर पाऊंगा। तो ये कुछ तरीके हैं मोनेटाइजेशन के, ये आप कर सकते हो। और एक चीज़ है कि आपकी कोई डिजिटल प्रोडक्ट होगा तो अपने आप पॉडकास्ट के दौरान आप वो भी सेल कर सकते हो। आप लाइक कोई आपकी ई बुक है तो आप उसमें ई बुक के बारे में बोल सकते हो, प्रमोट कर सकते हो, तो आपका लोग ई बुक परचेस करेंगे। और हाँ, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो लोग करते हैं, जैसे कि इंडिया में तो न्यू है, बाकी कंट्रीज में यूएस वगैरह में करते हैं लोग, उसको बोलते हैं पेड बुकिंग्स। पेड बुकिंग्स जैसे कि मैं आपको रीच आउट करूंगा, आपको बोलूंगा कि आपको मेरे शो पे आना है, तो आप बोलोगे हाँ, तो मैं बोलूंगा दिस इज व्हाट आई चार्ज, आपको मैं $200 चार्ज करूंगा, आप मेरे शो पे आ सकते हो एज अ गेस्ट, जो कि मैं अभी नहीं करता हूँ। वो इन फ्यूचर शायद मैं कभी कभी करूँ, लाइक मुझे बहुत लोग रीच आउट करते हैं, मैंने अभी तक सबको मना किया है पेड बुकिंग्स के लिए, बट मे भी इन फ्यूचर में कर सकता हूँ, बट अभी तो मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं कुछ और माइंडसेट में चल रहा हूँ। तो ये भी एक चीज कर सकते हो, उसको बोलते हैं पेड बुकिंग्स। तो ये कुछ तरीके स्पॉन्सर्स, पेड बुकिंग्स और वो जो प्री रोल्स एड्स आते हैं, तो ये कुछ तरीके थे। आई होप आई इट आंसर्स योर क्वेश्चन। बहुत बहुत बढ़िया पीयूष, इट वाज एन आई ओपनर, लॉट ऑफ इंटेंजिबल एंड टेंजिबल वेज ऑफ मोनेटाइजिंग, बहुत बढ़िया। मेरे लिए भी बहुत से मतलब दो तीन पॉइंट्स जो आपने बताए हैं, बहुत मतलब सीखने के लिए मिला है इससे भी। तो अगला जो मेरा सवाल है पीयूष, आपके लिए सबसे मतलब इम्पोर्टेंट और पैशनेट और क्लोज टू योर हार्ट वाला सवाल होगा आपके शो के बारे में, द पीयूष कुकरेजा शो, द नंबर 1 या हिंदी पॉडकास्ट शो। तो ये या कैसे आपने शुरू किया, क्या थॉट प्रोसेस था, ये कहाँ से आपको आइडिया आया, और अब तक आपने बहुत कुछ किया है शो में, मैंने भी देखा है, इसका सक्सेस रेट हैज बीन ट्रेमेंडस, इट्स बीन ट्रेंडिंग एज अ नंबर 1 हिंदी पॉडकास्ट। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। सो थैंक यू सो मच। मैं ये जानना चाहूंगा कि इसके पीछे स्टोरी क्या है। या थैंक यू सो मच मुझे इस प्रिविलेज देने के लिए कि मैं अपने शो के बारे में आपके शो में बात कर सकूं और शेयर कर पाऊं। थैंक यू सो मच फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। सो मैं बताता हूँ द पीयूष कुकरेजा शो ये कैसे शुरू हुआ, मेरे दिमाग में आइडिया कहाँ से आया और ये सब चीज़ें हुई कैसे। तो मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूँगा जो कि उससे रिलेटेड, बहुत रिलेटेड है मेरे पॉडकास्ट से। मैं जब न्यू था डिजिटल मार्केटिंग में, लाइक 3 साल पहले की बात है, अप्रैल 2017 की, या मैं 2017 जब मैं डिजिटल मार्केटिंग में आया था फाइनेंशियल क्राइसिस के घर में, मैं धीरे डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा था और साइड बाय साइड में एक एमएनसी में जॉब कर रहा था, जो कि जॉब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग करनी था और मुझे डिजिटल मार्केटिंग में जाना था, मैं वो पैसों के लिए कर रहा था। ठीक है, वो छोटी स्टोरी हो गई। उसके बाद फिर मैंने एक इंटर्नशिप ज्वाइन किया जो कि डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप थी, जो जिनके अंडर में मैं काम करता था उनका नाम था जय, मैं उनको बोलता था जय भैया। तो वो है ना मुझे इवेंट्स में लेके जाते थे, काफी ज्यादा इवेंट्स में। वो क्लाउड बाजार नाम से एक बहुत मशहूर इवेंट्स है, उनके वो मीडिया पार्टनर है, लाइक ऑर्गेनाइजिंग वगैरह करने में हेल्प करते हैं, स्पॉन्सर लाने में वगैरह वगैरह। और गोडैडी के कुछ कुछ लॉन्च इवेंट्स भी करते हैं वो, कभी मुंबई में, कभी पुणे में, कभी नासिक में, जहाँ रहता हूँ वहाँ पे। तो मुझे इवेंट्स में लेके जाते थे। तो मुझे एक बार वो क्लाउड बाजार नाम से इवेंट है, मुझे लेके गए और मैं बहुत न्यू था, लाइक अक्टूबर 2017 की बात है, मैं बहुत फ्रेशर था, मुझे 3 से 4 महीने हुए थे, वो भी हम एज अ फ्रेशर और न्यू भी कंसिडर कर सकते, 3-4 महीने कोई ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं, एक्सपीरियंस है ही नहीं वो। तो मैं वो टाइम पे मैं कुछ डिजिटल मार्केटर्स को फॉलो करता था, और टू बी ऑनेस्ट वो टाइम पे बहुत कम लोग इतना पर्सनल ब्रांड इतना नहीं हुआ था इंडिया में, लाइक बहुत कम लोग वो खुद का नाम प्रमोट करते थे। तो उसमें 3 लोग आप भी जानते होंगे, एक तो नील पटेल हमारे, आप जानते होंगे नील पटेल, आप गूगल पे कुछ भी डालो तो मैं लर्न उनके ब्लॉग से ही करता था। और एक है दीपक कनक राजू, उनका नाम है डिजिटल दीपक, दीपक कनक राजू। एंड थर्ड इज सौरजन। इन 2-3 लोगों को मैं फॉलो करता था, उनको एज अ एडमायर करता था। स्पेशली मैं डिजिटल, क्योंकि इंडिया की बात है तो स्पेशली डिजिटल दीपक को मैं काफी इंस्पायरिंग लगते थे। जैसे कि अभी हम किसी को एक्टिंग में जाना है तो शाहरुख खान को देखते हैं, आमिर खान को किस नजरिए से देखेंगे वो, तो सेम मैं उस नजरिए से नील पटेल, दीपक, इनको देखता था एज अ स्टार्स। और डिजिटल मार्केटिंग में आपको पता है ये बॉलीवुड जैसा ही है मेरे ख्याल से, कि हम इन्फ्लुएंसर्स को एज अ स्टार ही देखते हैं, लाइक डिजिटल मार्केटिंग में देखा जाता है। तो इवेंट में जो मैं जा रहा था क्लाउड बाजार, उसके वजह से 2 रीजंस थे। एक तो दीपक राजू, एक तो मेरे को इवेंट में जाने का मजा था। तो मैंने उनका सेशन अटेंड किया, बात की उसके बाद। तो मैं ऐसे ही बाद में जब इवेंट हो गया था, मेरे पास से गुजर रहे थे वो, लाइक इन 10 मीटर से दूरी पे गुजर रहे थे। तो मैंने सोचा लेट्स टेक एस इंटरव्यू, इंटरव्यू इन द सेंस लेट्स टेक ए शॉर्ट वीडियो, छोटा वीडियो लेता हूँ उनके साथ कि हम साथ में अभी क्लाउड बाजार में क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो मैंने ऐसा सोचा, फिर मैं सोच रहा, डर रहा था मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, ही इज अ वेरी बिग इन्फ्लुएंसर, जाऊँ। मैंने सडनली सोचा ओके पीयूष जाते, पूछते हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं, पूछने में क्या भाई। मैं गया, उनको पूछा है दीपक दिस इज पीयूष, मैं ऐसा करता हूँ, छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया मैंने उनको, और बोला मैं आपके साथ एक छोटा सा वीडियो लेना पसंद करूंगा, सो वुड लाइक टू शूट अ वीडियो विद मी, छोटा सा इंटरव्यू रहेगा, मैं आपको पूछूंगा ये इवेंट कैसा है, लाइक इवेंट में आए हो और आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। तो मैंने ऐसे ही वीडियो निकाला, कैमरा निकाला, बहुत ही वियर्ड वीडियो था वो, फनी, आप यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। लाइक मैं बहुत छोटा था वो टाइम पे, लाइक आई वाज 20। तो मैंने वीडियो निकाला, हे गाइस दिस इज पीयूष,
And today I'm at Cloud Bazaar event Mumbai, and today with me is Deepak Raju, Digital Deepak, one and only Digital Deepak. मैं बहुत excited था, बहुत excited, क्योंकि like you know अगर आप एक्टिंग करियर में जा रहे हो और आप शाहरुख खान आपको मिल गया तो कैसे एक्साइटेड होंगे, तो वो टाइम पे ऐसा एज अ बिगिनर की सोच ऐसी होती है। तो मैंने उनका इंटरव्यू लिया, 1.5 से 2 मिनट का ही था, ज्यादा बड़ा नहीं, 1.5 से 2 मिनट 3 मिनट का था इंटरव्यू, जहाँ पे मैंने उनको पूछा था डिजिटल मार्केटिंग करियर कैसे स्टार्ट करना है और क्या क्या ऑप्शंस है। तो उन्होंने वो बताया था, हिंदी में था, ऑब्वियसली हिंदी में शुरू हुआ था वो, बिकॉज आई एम मोर कंफर्टेबल इन हिंदी, तो मैं हिंदी में हुआ था वो। तो मैंने बहुत एक्साइटेड हो गया, इसको मैंने यूट्यूब पे शेयर किया, और बस में जाते जाते फेसबुक पे भी इधर लिंक शेयर कर रहा था। और मेरे काफी वो टाइम पे डिजिटल इतना कम्युनिटी नहीं था मेरा, बट मेरे जो रिश्तेदार थे, मेरे कुछ कॉलेज फ्रेंड्स थे, मेरे जो ऑफिस से कलीग्स थे, और जहाँ पे इंटर्नशिप कर रहा था वो मेरे खुद के जो जय भैया जिनका नाम है, जो मतलब बॉस बोल सकते हो, उन्होंने भी बहुत अप्रिशिएट किया, मुझे बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया। तो एक फनी चीज है, आप फनी बोलोगे उसके बाद, कि मैं क्या सोच रहा था जाते जाते, मैं बोल रहा था इंटरव्यू लेने में मेरे को बहुत मजा आया, मैं ऐसा करूंगा सौरभ जैन का भी एक दिन इंटरव्यू लूंगा जो चेन्नई में रहता है, और अभी आ रहा, या जो 2-3 मेरे दिमाग में नाम आ रहे थे यार, ये दिल्ली में रहते हैं, जयपुर में रहते हैं। तो मैं सोच रहा था जाते जाते कि मैं फिर यार, फिर मैं बस में वहां पे कैसे जाऊंगा, मतलब कैमरा खरीदूं, फिर मैं सौरभ जैन के बाद चेन्नई जाऊँ, या सौरभ जैन को मुंबई बुलाऊं इंटरव्यू के लिए, या मैं उधर दिल्ली जाऊँ, ऐसा सोच रहा था। मैं सोच रहा था कैसे करूंगा, मैं बोला एक ना एक दिन पक्का ऐसा करूंगा, फिगर आउट करूंगा। तो ये ऐसे ऐसे हो गया। फिर अगस्त की बात है, अगस्त 2018 की। तो एक बंदा है रोनित नाम से, ही वाज डूइंग अमेजिंग जॉब इन पॉडकास्ट। तो मैंने देखा ये पॉडकास्ट क्या चीज है, मैं तो सुनता था गैरी वी के पॉडकास्ट में, बोला ये बंदे ने कैसे स्टार्ट किया, इसके लिए तो मतलब कुछ पेड टूल्स होंगे शायद, इसने कैसे स्टार्ट किया। तो छोटा बच्चा इन 15-16 साल का था वो। तो फिर मैंने उसको पूछा, तो उसने बोला यार एक सिंपल सा ऐप है Anchor.fm, डाउनलोड करो हो जाएगा। तो मतलब क्या बात कर रहा है, मेरे को तूने पहले नहीं बताया, मैं चेन्नई जाने का प्लान बन रहा था। तो ऐसा चीज हो गया। तो उसने मुझे वो ऐप बताया, जिस दिन उसने मुझे ऐप बताया मैंने उसी दिन इंस्टॉल किया, उसी दिन मैंने ऐप के बारे में समझा, स्टडी किया, अच्छा ये Anchor.fm ऐसे चलता है, और मैंने उसी दिन अपना पहला एपिसोड रिकॉर्ड किया, और नेक्स्ट डे सुबह ही मेरा एपिसोड मेरा लॉन्च कर दिया। तो ऐसे कुछ मेरे पॉडकास्ट। हाँ, और एक रीजन ये भी था कि मुझे कंटेंट क्रिएशन में आना था, बट टू बी ऑनेस्ट मैं वीडियो में थोड़ा नर्वस था, मुझे थोड़ा, मैं इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन था, अभी भी थोड़ा बहुत हूँ। तो मुझे वीडियो में आना पसंद नहीं था, मुझे डर लग रहा था वीडियो कैसे शूट करूँ। मैंने 2-3 वीडियो शूट किया था, डिलीट भी कर दिए थे, मुझे बहुत डर लग रहा था वीडियो। तो बोला यार पॉडकास्ट में तो शक्ल तो दिखानी ही नहीं है, ऑडियो बस रिकॉर्ड करो, पीछे किसकी शक्ल किसको पता, रिकॉर्ड कर लो, डरने का क्या बात है, इसमें कोई देखेगा भी नहीं। फिर पहला एपिसोड में मुझे तकलीफ हुई थी, लाइक मैंने 30 से 40 बार रिकॉर्ड किया, क्योंकि हमेशा हमको खुद की आवाज पसंद नहीं आती है, ऐसे मैंने बहुत लोगों से भी सुना, और मैंने खुद ने भी एक्सपीरियंस किया, खुद की आवाज हमको थोड़ी अजीब लगती है स्टार्टिंग में, अभी तो मुझे अच्छी लगती है, स्टार्टिंग की बात करो। तो मैंने ऐसे रिकॉर्ड किया कि दो चीजें ये थी कि एक मुझे इंटरव्यू लेना था लोगों का, दूसरा रीजन कि मुझे सामने आने की जरूरत नहीं, और मैं बैकएंड से ही मैं कंटेंट क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये एक छोटा सा रीजन था, ये छोटी सी स्टोरी थी कि मैंने इसीलिए पॉडकास्ट स्टार्ट किया, और मुझे कंटेंट क्रिएट करना था, और मुझे इंटरव्यू लेना था लोगों का, तो ऐसे मैंने स्टार्ट किया पॉडकास्ट। हाँ, और आप पूछ रहे हो कि शो में करता क्या हूँ एग्जैक्टली। तो शो में बेसिकली मैंने एज ए सोलो पॉडकास्ट शो शुरू किया। पहले 2-3 एपिसोड हुए, फिर मैंने, पहले मेरे गेस्ट थे नवल गुप्ता, हमने लिंक्डइन के बारे में बात की, फिर मुझे बहुत मजा आया, यू वोंट बिलीव, मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला। 4-5 दिन, एक हफ्ता ही हुआ था अराउंड, मुझे 4 या 5 दिन ही हुए थे मुझे पॉडकास्ट शुरू करे हुए। द पीयूष कुकरेजा शो नाम भी रखा था, क्योंकि मेरा खुद का नाम है पीयूष कुकरेजा, तो मैंने स्टार्टिंग में द लगा दिया, आखिर में शो लगा दिया। द इसलिए लगा क्योंकि मेरा पहले से इंस्टाग्राम यूजर नेम वही था, द पीयूष कुकरेजा शो, बिकॉज आई एम द रॉक फैन, इसलिए मैंने द लगाया था। और आखिरी में शो लगा क्योंकि मैं गैरी वी का फैन हूँ, आज गैरी वी शो उनका शो है, तो मैंने ये थोड़ा शो लगा दिया। तो अब वो टाइम पे पॉडकास्ट इतना न्यू था, अभी तो भी लोगों ने सुना है पॉडकास्ट, वर्ड पता है, वो टाइम पे लोगों को पता भी नहीं था, डिजिटल मार्केटर्स को भी नहीं पता। तो वो टाइम में पुणे रहता था, छोटे छोटे मीटअप्स होते हैं ना हमारे, 50 लोगों के, 40 लोगों के मीटअप, 30 लोगों के मीटअप, छोटे छोटे इवेंट्स मीटअप, जहाँ पे लोग बात करते आते हैं और एक कोई स्पीकर होता है। तो वहाँ पे मैं जाता था बहुत पुणे में, तो लोग मुझे लोकली लोग पहचानते थे। फिर मैं, लेट सपोज मैंने लॉन्च किया है वो एपिसोड फ्राइडे को, और लाइक संडे को ही कोई इवेंट था, नेक्स्ट संडे लाइक अराउंड 7-8 दिन बाद। तो मैं इवेंट पे गया, यू वोंट बिलीव, वो मीटअप था 30-40 लोगों का। वहाँ पे सब लोग मेरे को फेसबुक पे करते, बोल रहे अरे पॉडकास्ट वाला आ गया, पॉडकास्ट गाय, अरे तेरा पॉडकास्ट शुरू हुआ ना, मैंने सुना था वो पॉडकास्ट में। तो मेरे को इतना अच्छा लगा, अरे लोग पॉडकास्ट से अभी से जानने लग गए लोग, ऐसे कैसे, क्योंकि वो यूनिक था, क्योंकि वो नई चीज थी। अगर मेरा यूट्यूब चैनल होता तो कोई नहीं देखता था, क्योंकि वहाँ पे 10 लोग पहले से यूट्यूब चैनल खोल के बैठे थे, उसमें कोई अच्छी बात यूट्यूब चैनल खोलना, बट यूनिक नहीं है। सब लोग बोल रहे थे अरे तेरा पॉडकास्ट मैंने सुना, वो नवल गुप्ता के साथ सुना, तेरा वो वाला भी मैंने सुना था ब्लॉगिंग वाला, अरे तूने वो भी किया, सही था वो। ये बोले करते कैसे, बहुत इंटरेस्ट लेते लोग। ऐसा होगा कि स्पीकर का तो सुन रहे लोग, बाद में मेरे से लोग बात करने लगे यूट्यूब में पॉडकास्ट। तो मुझे वो भी एक मोटिवेशन मिला कि यार ये तो बहुत मजा आ रहा है, फिर मैंने करना शुरू किया। अभी फिर मैं शो पे, बेसिकली ये डिजिटल मार्केटिंग शो है, हिंदी में है जो कि, और मैंने हिंदी चुना क्योंकि मैं हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। हिंदी और हिंदी में मैं ज्यादा कनेक्ट भी करता हूँ, और हिंदी एक अच्छी भाषा है
काफी लोग उसको अंडर एस्टिमेट भी करते हैं, काफी लोग शर्माते भी हिंदी बोलने में। मैंने देखा है कि इवेंट में लोग फोर्स करते हैं खुद को इंग्लिश बोलने में। ठीक है, इंग्लिश बोलना अच्छी बात है, इंग्लिश आनी भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, बट मेरे हिसाब से इंग्लिश सिर्फ भाषा है। एक किसी की इंटेलिजेंस को इंग्लिश से जज मत कीजिए। बहुत लोग मैं देख रहा हूँ करते हैं, और उसी वजह से बहुत जो न्यू कंटेंट क्रिएटर्स आ रहे हैं, जो 17 साल के, 18 साल के, 20 साल के, 25 साल के जो यंग आ रहे हैं, वो भी खुद को इंग्लिश फोर्स करके बोल रहे हैं, लाइक, और वो इंग्लिश की वजह से नहीं भी आ रहे, इंग्लिश को एक कारण बता रहे कि नहीं मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं, आपकी हिंदी अच्छी, हिंदी में बोलो, आप गुजरात में तो गुजराती में बोलो, क्योंकि हर एक भाषा को लैंग्वेज है, स्पेशली हिंदी में। मैं कुछ नाम भी दूंगा, विवेक बिंद्रा जी को आप जानते होंगे, जो कि हिंदी पॉडकास्ट नहीं, सॉरी, यूट्यूब चैनल उनका 10 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है, 10 मिलियन से ज्यादा, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एंटरप्रेन्योर, सबसे बड़ा चैनल है। संदीप महेश्वरी जी हो गए, टेक्निकल गुरु जी हो गए, एंटरटेनमेंट फील्ड में देखा जाए तो आशीष चंचलानी, भुवन माम, बीबी के वाइन, ये सब लोग हो गए। तो हिंदी एक भाषा है, तो इसलिए मैंने लिखा, और शो पे आता हूँ मैं, तो द पिक्चर शो में मैं डिजिटल मार्केटिंग की बातें करता हूँ हिंदी में, खुद की भी जर्नी शेयर करता हूँ, और मैं इंटरव्यूज भी लेता हूँ आप जैसे एक्सपर्ट्स की, आप जैसे जो इन्फ्लुएंसर है, जो ऑनलाइन वर्ल्ड में कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, कुछ लोगों की जिंदगी में वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं उनका इंटरव्यू लेता हूँ। तो ये छोटी सी कुछ बात थी मेरे शो के बारे में, आई होप आपको पसंद आई होगी। ये बहुत ही बढ़िया, वेरी पैशन ड्रिवन एंड वेरी इंसाइटफुल, एंड द आइडिया ऑफ थोड़ा मतलब चुटकुला टाइप का भी था इन द बिगनिंग, सो इट इट एक्चुअली रेजोनेटेड रियली वेल। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा लगा सुन के। तो पीयूष, एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहूंगा कि अभी लॉकडाउन सिचुएशन है, आज अनाउंसमेंट आया कि 2 वीक और लॉकडाउन इंक्रीज किया गया है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए आपका क्या रिकमेंडेशंस होगा फ्यूचर पॉडकास्टर्स के लिए, कि मतलब क्या, कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें? कोई रिकमेंडेशंस, कोई टूल्स, कोई रिपोजिटरी जहाँ से कहीं से मतलब सीखें और आगे बढ़ें इस मीडियम को लेकर? सो पहली बात, आपने जो बोला 2 हफ्ते और लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ है, तो इसको मैं देखता हूँ कि 2 हफ्ता हमारी अपॉर्चुनिटी और इंक्रीज हो गई है, 2 हफ्ता हम और अपने आप पे काम कर सकते हैं, हमारा और एक 2 हफ्ते का मोदी जी ने मौका दे दिया है। हाँ, मैं समझता हूँ लॉकडाउन में बहुत लोगों का नुकसान भी हो रहा है, काफी मुझे जो लोग हैं जिनके पास आज काफी जो वर्कर्स लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, माई हार्ट गोज टू देम एज वेल, बट एक जो पर्सनल लेवल की जो बात कर रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं यूट्यूब का, जिनको देखने का प्रिविलेज मिला है, तो ऐसा समझो कि आपको 2 हफ्ते की अपॉर्चुनिटी और बढ़ा दी है मोदी जी ने, ऐसा सोचो। मैंने इस बारे में ट्वीट भी किया था, इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी किया था कि हमारी लास्ट टाइम भी मोदी जी ने 2 हफ्ते का ही बढ़ाया था, नहीं 19 दिन का बढ़ाया था, अभी 2 हफ्ते का बढ़ा है, शायद पता नहीं आगे क्या हो। तो 2 हफ्ते की आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ी है। तो अगर आपको पॉडकास्ट स्टार्ट करना है, तो टूल्स तो आपको Anchor.fm वगैरह लगेगा, पर योर बिगेस्ट टूल इज योर माइंड, मेरे ख्याल से माइंड एक टूल है, जो कि उसको अगर जिस तरीके से इस्तेमाल करोगे उस तरीके पे आप जाएगा। तो अगर आपको स्टार्ट करना है, तो पहली बात मेरा एडवाइस ये होगा कि ओवर थिंक मत करो। अभी सोच लो, अगर ये पॉडकास्ट सुनने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद यूट्यूब पे आपको अगर लग रहा है कि पॉडकास्ट शुरू करना चाहिए, तो आप सोचो मत, वीडियो देख खत्म होने के बाद आप शुरू कर लो। टूल अगर बोला जाए तो एक Anchor.fm नाम से टूल है, जो मैंने शुरुआत में बताया, तो वो एक टूल है, आप वहाँ से इजीली शुरू कर सकते हो। वहाँ पे आपको बहुत सारे म्यूजिक्स भी है, आप म्यूजिक भी वहाँ पे डाल सकते हो, 30 से 40 म्यूजिक्स की आपको लाइब्रेरीज मिलेगी, कुछ आपको छोटे से 15-15 सेकंड के ट्यून्स भी मिलेंगे वहाँ पे, कुछ अगर आपका कॉमेडी में तो कुछ कॉमेडी ट्यून्स भी है, 5-6 यहाँ पे बीच में कुछ आवाज आती है 3 सेकंड की, 4 सेकंड, वो भी ट्यून्स है वहाँ पे, और अच्छे से बैकग्राउंड म्यूजिक भी है बड़े बड़े वहाँ पे, तो वो तो म्यूजिक भी आपको मिलेगा वहाँ पे। और वहाँ पे आप एडिट भी कर सकते हो, अगर आपको लेट सपोज कुछ एपिसोड है वहाँ पे स्टार्टिंग में आपको कुछ गड़बड़ हुई है, तो आप उसको कट स्प्लिट भी कर सकते हो, आखिरी में आपको लग रहा है कुछ कट करना है तो उसको आप वो भी स्प्लिट कर सकते हो। हाँ, वहाँ पे थोड़ा सा मैनुअल वर्क हो जाएगा। मैं आपको प्रेफर करूँगा कि कोई भी नॉर्मल टूल, जैसे अगर आप लैपटॉप यूज करते हो तो फिल्मोरा नाम से एक फ्री टूल है, फ्री सॉफ्टवेयर वीडियो एडिटिंग का, वहाँ पे ऑडियो भी एडिट कर सकते हो, वो एक टूल है। या तो मोबाइल के अंदर अगर आप प्ले स्टोर में जाओगे, या अगर आपका आईफोन है तो आई स्टोर जो होता है, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, आप सिर्फ सर्च करना ऑडियो कटर या तो ऑडियो एडिटर, कोई भी ऑडियो एडिटर में सिंपल आप एडिट कर सकते हो अपना ऑडियो, ये एक टूल हो गया। और आप पूछ रहे हो कि अगर हमारा पॉडकास्ट का बैनर कैसे बना है, तो canva.com नाम से एक टूल है, वहाँ से अपना पॉडकास्ट का बैनर, कवर पिक्चर, कवर आर्ट, जो भी आपको बनाना है, गेस्ट एपिसोड के बारे में कुछ बनाना है, तो इजीली वहाँ पे हजारों टेम्पलेट्स अवेलेबल है, बहुत सारे, आपको थोड़ा सा खेलना है बस ये। और आप चाहते हो कि आपके पॉडकास्ट को आपको छोटे से वीडियोस में भी कन्वर्ट करना है, तो InShot नाम से ऐप है, मोबाइल ऐप है, जो कि फ्री ऐप है, पेड वर्जन भी आप यूज कर सकते हो, बट यू कैन स्टार्ट विद फ्री। मैं भी फ्री ऐप यूज करता हूँ, वो आप यूज कर सकते हो। उसमें आप इसको ऑडियो का एज अ वीडियो कन्वर्ट कर सकते हो, थोड़ा बहुत आपको खेलना पड़ेगा, यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो हाउ टू यूज InShot ऐप। और पर मैं यूज करता हूँ प्रीमियर प्रो एंड फाइनल कट प्रो, जो कि थोड़े से हाई एंड सॉफ्टवेयर है, वो शायद सब लोग नहीं यूज कर पाए, क्योंकि हर बंदा टेकी नहीं होता है।
बट मैंने आपको नॉन टेक की एप्स बता दिए इन शॉर्ट, और एक है काइंड मास्टर है, वो यूज कर लो। बहुत सारे टूल्स है। अगर आपको इंट्रोडक्शन बनाना है, वीडियो इंट्रोडक्शन, तो क्विक नाम से एक ऐप है, क्विक। आप प्ले स्टोर पर डालोगे क्विक, आपको आ जाएगा। गोप्रो का एक ऐप है वो। और अगर आपको थोड़ा सा हाई एंड थोड़ी सी स्किल्स है, आप क्या सीखना चाहते हो, तो फोटोशॉप में फोटो बना लो, एंड एडोबी प्रीमियर प्रो एंड फाइनल कट प्रो आर द टूल्स विच आई यूज। और लॉकडाउन में आप स्पेशली क्यों स्टार्ट करो, रीजन ये है कि अगर आप किसी भी बड़े इन्फ्लुएंसर को आप इनवाइट करना चाहते हो, कि लेट्स सपोज कोई XYZ मार्केट कंपनी का मार्केटिंग हेड, तो आज वो घर पे बैठा है बंदा, ये एक मौका है। मेरे हिसाब से आपको यूज करना चाहिए। अगर आप एज अ बिजनेस की बात करो, तो किसी को भी अप्रोच करना है आपको, तो ये पहली बार ऐसा हुआ है मेरी जिंदगी में, क्योंकि मैं तो आप इसमें शायद हुआ होगा इसके पहले भी, आई डोंट नो, ये चीज की बड़े से बड़ा मार्केटिंग हेड भी आज घर पे बैठा है, बड़े से बड़ा CEO भी, कंपनी का मालिक भी आज घर पे बैठा है। यू वोंट बिलीव, रियल एस्टेट ऐसा फील्ड है जहाँ पे जो रियल एस्टेट का जो होता है ना ओनर, जो मेन चलाता है, जो उसका चेयरमैन, वो कभी घर पे नहीं बैठता है। लाइक रेयर केस सिनेरियो में कुछ घर पे शादी वगैरह या कुछ है तो बैठता है घर पे, या वो भी रेयर केस, वो भी स्पेशली सिंधी लोग तो घर पे कभी नहीं बैठते हैं। मैं सिंधी, तो आज सिंधी लोग भी घर पे बैठे, मारवाड़ी घर पे बैठे, गुजराती घर पे बैठे, रियल एस्टेट कंपनी के ओनर्स घर पे बैठे, जो कि बहुत बड़ी बात है, मेरे को तो ऐसा लगता है। और मेन बात तो होटल इंडस्ट्री के जो ओनर्स है वो घर पे बैठे, मतलब इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती। तो किसी को भी आपको इनवाइट करना है, डजंट मैटर कोई भी फील्ड का हो। और आप क्रिकेट में पॉडकास्ट करना चाहते हो, तो बड़े से बड़े क्रिकेटर को भी आप शो पे ला सकते हो, एक तरीका है सिर्फ रीच आउट करने का, क्योंकि आज वो घर पे बैठे हैं, उनके पास टाइम है, आपके साथ वो आधा एक घंटा स्पेंड कर सकते हैं, और उनके लिए भी थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाएगा। तो लॉकडाउन एक मौका है, बड़े से बड़ा मार्केटिंग हेड, बड़े से बड़ा इन्फ्लुएंसर भी आज घर पे बैठा है, CEO भी घर पे बैठा है, उनको भी आप इन्वाइट कर सकते हो। लॉकडाउन का ऐसा मौका लो, आपके पास भी उल्टा ज्यादा टाइम एक्सप्लोर करने का, और ब्रांड भी आपका अच्छा बनेगा, क्योंकि आप फ्री टाइम बहुत है। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट अ पॉडकास्ट एंड इनवाइट एनीबॉडी यू वांट। फैंटास्टिक फैंटास्टिक पीयूष। सो एक आखिरी चीज, मेरे शो में हमेशा मैं एक सक्सेस मंत्र हाँ पूछता हूँ अपने जी जी। गेस्ट से। तो आपकी हाँ तरफ से अगर कुछ सक्सेस मंत्र है जिससे आप मतलब बोले और अपने ऑडियंस को हम्म, इंस्पायर कर सकें, तो ऐसा कुछ अगर है आपके जहन में तो हम्म, बहुत अच्छा रहेगा बोलेंगे। जी जी जरूर। सक्सेस मंत्र इन पॉडकास्ट या इन लाइफ? इन लाइफ जनरली। ओके, इन लाइफ अगर बोला जाए तो मेरे हिसाब से फोकस एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि मैं खुद भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, टू बी ऑनेस्ट। जब जब मेरा फोकस बिगड़ा, तब तक मेरा काम बिगड़ा। लाइक मैंने बहुत बार ऐसा हुआ कि स्टार्ट में मैं कुछ चीज़ कर रहा था, फिर मेरी कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे मैं ये चीज़ कर रहा हूँ कुछ, अरे वो ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, वो तो 10 लाख कमा रहा है, चलो लेट्स डू दैट। अरे छोड़ ड्रॉप शिपिंग को, वो देखो सागर नाम से बंदा है, वो ब्लॉगिंग में 20 लाख कमा रहा है, अरे ड्रॉप शिपिंग तो होती रहेगी, 10 लाख है वहाँ, 20 लाख है, चल जाओ वहाँ पे, चले जाओ वहाँ पे। फिर ये करते फोकस बिगड़ता है, टू बी ऑनेस्ट। मैं खुद भी ये था, मेरा भी फोकस बिगड़ता था, जो कि अब मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस करके धीरे धीरे आई कैन से आई एम लेजर गोइंग, लेजर 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 फोकस। तो मेरे हिसाब से मेरी बेस्ट एडवाइस ये होगी कि एक ही चीज पे लेजर फोकस रहो, एंड आप जिस भी चीज को चाहते हो, अपने आप आपकी वो सब चीजें गिरती जाएगी। वो एक इंग्लिश में कहावत है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, शायद आपको पता होगा, आप बोल सकते हो, कि हिंदी में ऐसा बोलते हैं, जिस चीज में आपको शिद्दत से चाहते हो, तो आपकी पूरी कायनात लगाने में हेल्प करती है। और मेरे साथ हुआ है। डिजिटल मार्केटिंग में मुझे कुछ नहीं पता था, मैं चलते गया, वहाँ पे लोग मिलते रहे, आप जैसे इन्फ्लुएंसर मुझे इनवाइट कर रहे हैं अभी धीरे धीरे धीरे, और मैं बड़े बड़े लोगों से मिलते गया। अभी आ रहे सौरजन, मैंने कभी नहीं सोचा था इनके साथ मैं काम करूंगा, ये बड़े बड़े एक्सपर्ट के साथ, इतने कम एज में और इतने अपने कम एक्सपीरियंस के लेवल में, लाइक 3-4 साल ही मुझे हुए, और फिर भी मैं कर रहा हूँ। तो फोकस इज द नंबर वन थिंग, एंड कंसिस्टेंट, फोकस एंड कंसिस्टेंट, ऑल्सो बी ऑनेस्ट एंड काइंड। हमेशा ऑनेस्ट रहिए और काइंड रहिए, हमेशा डोंट फेक इट टिल मेक इट, ऑनेस्ट रहिए। किसी गेस्ट को भी इन्वाइट करना है, किसी ऐसा मत बताइए कि आपका शो बड़ा है या कुछ है, जैसा है वैसा है तो है ठीक, जो है उनको बताइए, क्योंकि ऑनेस्टी बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं मेरे को हमेशा हेल्प किया, क्योंकि आज मुझे जो भी मेरे साथ क्लाइंट का रिलेशन, जैसे अभी आ रहा है, इनके साथ जो भी मेरा रिलेशन है, मेरे पे बहुत ट्रस्ट करते हैं। अभी आ रहा है जितेंद्र वासवानी, और भी मेरे जो दूसरे पर्सनल क्लाइंट्स है, ई कॉमर्स में भी है या दूसरे, मुझे बहुत ट्रस्ट करते हैं ड्यू टू माई ऑनेस्टी। तो आई थिंक दिस इज माई स्ट्रेंथ, आई कैन से, एंड माई काइंडनेस। सो जैसा मैं, आपने एक एडवाइस बोली, मैंने 2 या 3 बोल दी। फैंटास्टिक फैंटास्टिक पीयूष। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द फायर अड्डा। आई एम प्रीटी श्योर जो हमने आज डिस्कस किया है उससे वी विल बी इन अ पोजीशन टू क्रिएट एन आर्मी फुल ऑफ पॉडकास्टर्स। वी विल बी एबल टू इन्फ्लुएंस दैट, मेरा ये मानना है। थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुल इनसाइट्स, बहुत मजा आया आपसे बात करके, एंड विल स्टे इन टच। थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड मैं भी आपका पॉडकास्ट सुनने में काफ़ी एक्साइटेड रहूँगा, आप जो स्टार्ट करोगे इसके बाद। एंड मैं भी आपकी वीडियोस देखता हूँ, काफ़ी इंस्पायरिंग होती है, आपने जो जो इंटरव्यूज किए मैंने कुछ कुछ देखे भी, एंड आपका इंस्टाग्राम चैनल भी काफ़ी अप्रोचेबल एंड इंस्पायरिंग है। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू कम ओवर हियर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बाय बाय।